آغاز کریں گے اور بات کریں گے دشمنوں کی اس کارروائی کی جس کو سیکیورٹی فورسز نے جان پر کھیل کر ناکام بنا دیا۔ کراچی پولیس آفس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ تمام 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ عمارت کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 2 پولیس اہلکار اور 1 رینجر اہلکار سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ رینجرز اور پولیس کے 14 اہلکار زخمی ہوئے۔ ہماری پولیس فورس، رینجرز اور آرمی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تینوں دہشت گرد جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہمارے 2 پولیس کے جوان، 1 رینجرز کا جوان اور 1 سویلین جو وہاں کام کرتا تھا وہ شہید ہوئے ہیں۔ نسیم کامران ٹیسوری نے بھی سی پی او آفس کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گرد انسانیت کے کھلے دشمن ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ بزدلانہ کوشش جس کا پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے بہادری اور جرأت مندانہ انداز سے مقابلہ کیا اور دشمنوں کے بزدلانہ اقدام کو نصب و نابود کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں سے جو را کی ایک انویسٹمنٹ اس شہر کے اوپر کی جاتی رہی ہے، جس میں کراچی کے امن کو خراب کرنا تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں آئی جی صاحب کو اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہ ان کی حکمت عملی نے اور ہمارے ان تمام جوانوں نے، رینجرز اور پولیس کے، کہ انہوں نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ کراچی میں دہشت گردوں کا حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور صوبائی حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پوری ریاستی قوت اور اشتراکی عمل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر سے کراچی کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھی پولیس آفس پر حملے کی مذمت، آپریشن میں حصہ لینے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا پاکستان کی سلامتی استحکام پر ہونے والے ہر حملے سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کسی بھی صورت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا دہشت گرد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے سیاسی خبروں کی۔ کپتان کے جیل بھرو تحریک کے اعلان کی بات کریں گے۔ عمران خان نے بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جیلیں بھرنے کا آغاز لاہور سے ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑے شہروں میں جیلیں بھریں گے۔ یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں مگر ہم ڈرنے والے نہیں۔ جیلیں اتنی بھریں گے کہ ان کے پاس جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ گینگ آف 5 خوشحال پاکستان کا قاتل ہے۔ جن 5 کرداروں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ ان کا احتساب نہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پاکستان آج سر کے بل چل رہا ہے۔ پیٹرول، بجلی، اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہیں۔ پرویز الہی نے آڈیو میں جو باتیں کی وہ انتہائی سنگین ہیں۔ اس آڈیو سے اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کی جو باتیں ہیں جو کل آڈیو لیکس ان کی آئی ہیں، یہ تو بہت سنگین ہے جو انہوں نے جن کے بارے میں جو باتیں کی ہیں۔ انہی کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے۔ سر کے بل گل رہا ہے اور سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کا ہر طریقے سے بھرپور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، الیکشن سے متعلق ہنگامی اجلاس کی دعوت دے دی۔ خط میں ڈاکٹر عارف الوی نے پہلے خط کا جواب نہ دینے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بے حسی پر ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ کے بینچ نے 90 روز میں الیکشنز نہ کرانے کے خلاف کیس سننے سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے الیکشنز میں تاخیر کا معاملہ پہلے ہی چیف جسٹس کو بھیج چکے ہیں۔ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی لیکڈ آڈیوز کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایف آئی اے نے آڈیوز کی فورینسک کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو چودھری پرویز الہی کے خلاف تحقیقات کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کی آڈیوز کو فورینسک کے لیے لاہور بھجوایا جائے گا۔ آڈیوز کی فورینسک رپورٹ کے بعد تحقیقات اگلے مرحلے میں داخل ہوگی۔ فورینسک رپورٹ وزارت داخلہ کو فراہم کی جائے گی۔
असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। घोटकी में थाना ए सेक्शन की हुदूद कादिरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त ना हो सकी। मारे गए डाकू के साथियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे और अब बात करेंगे महंगाई की। पाकिस्तान में गोश्त तो गोश्त, दालें भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। चिकन की कीमत में 50 रुपए किलो का इजाफा हुआ तो दालें भी खूब महंगी हो चुकी हैं। रिपोर्ट के साथ आयशा शुएब। दालों को छोड़िए और चिकन खाइए, ये कहना था हुकूमती रहनुमाओं का, लेकिन हुआ कुछ यूं कि अब ना दालें खाइए और ना ही चिकन। जिंदा रहना है तो सिर्फ हवा और पानी पर गुजारा कीजिए। जिंदा मुर्गी 417 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। यही हालात रहे तो चिकन कुछ दिनों में सोने की दुकानों में रखा नजर आएगा। मुर्गी का रेट जो है वो दिन ब दिन महंगा ही हो रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। जो मुर्गी पहले 150-200 रुपए किलो मिलती थी वो आज 400-450 रुपए किलो है। पहले हुकूमत कह रही थी कि दालें महंगी हो रही हैं, आप मुर्गी खाएं। अब मुर्गी भी जब महंगी हो रही है, दाल भी महंगी हो रही है, तो अवाम क्या खाए, जहर खा के मर जाए। अवाम का कहना है कि दालों की कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। लाल लोबिया 480, सफेद चने 400, जबकि दाल माश 420 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महंगाई के सताए अवाम न दाल खा सकते हैं न चिकन। बस सब्र करना ही शायद अवाम का मुकद्दर बन गया है। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। पेट्रोल की किल्लत ने कारोबारी जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। रोजाना उजरत पर घर चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर फाकों पर मजबूर हो चुका है। फैसलाबाद में एक ऐसा रिक्शा ड्राइवर भी है जो पेट्रोल ना मिलने के बाइस अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस रिक्शा ड्राइवर की दास्तान उसी की ज़बानी हम जानेंगे। आटे का बहरान के बाद अब पेट्रोल की मसनूई किल्लत ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुहाल कर दिया है। 55 साला रिक्शा ड्राइवर शौकत अली जो 4 बेटियों और 3 बेटों की कफालत कर रहा है। शौकत अली पहले तो दिन रात मेहनत करके घर के अखराजात चला रहा था, मगर इन दिनों पेट्रोल के बहरान और खुद साख्ता महंगाई ने इससे ये भी हक छीन लिया। सारी दिहाड़ी याद बच्चे की रोजी कमाई है ते या पंप तो तेल लगी है, जे पंप से जाइदा ते लंबियां लाइनां लगियां। शौकत अली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई और पेट्रोल के बहरान को खत्म करवाया जाए ताकि वो और इस जैसे दूसरे लोग अपना घर बआसानी चला सकें। रिक्शा ड्राइवर शौकत समेत सैकड़ों ऐसे रिक्शा ड्राइवर हैं जो पेट्रोल की शार्टेज और महंगाई के बायस मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर पेट्रोल की शार्टेज को ख़त्म करवाया जाए और महंगाई को कम की जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। कराची के शहरियों को सिंध हुकूमत की जानिब से रेड और पिंक पीपल्स बस सर्विस का तोहफा कामयाब और आरामदेह सफ़र साबित हो रहा है। रेड हो या पिंक बस के मुसाफिर ख़वातीन और मर्द सभी बस में मौजूद सहूलियात से आरास्ता, बसेस के सफ़र से मुतमईन है। रिपोर्ट के साथ मोना सिद्दीकी। कराची की शाहराहों पर दौड़ती रेड और पिंक बस सर्विस जदीद सहूलियात से भरपूर। बस के आने से मुसाफिर कहते हैं खटारा बसों से छुटकारा मिला और आरामदेह सफर मिला। ये चली है जब से ये गाड़ी, तो इससे काफ़ी लोगों की परेशानियां जो हैं कम से कम जो कायदाबाद मलीर की तरफ से आते हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। इसमें आवाम को बहुत सहूलत है, बड़ी अच्छी सर्विस है, आरामदेह सर्विस है, टाइम पे पहुंचाती है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि किराया सस्ता है। जो पिंक बस सर्विस को कराची की खवातीन ने खूब सराहा। कहती हैं सुकून से सफ़र किया जाता है। बच्चे भी आराम से बैठ के जा सकते हैं, बड़े भी आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई मसला। पिंक बस की सहूलत ये है कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कंफर्टेबल है। जो रोज़ाना आना जाना कर रही होती है फीमेल सेम टाइम पे, उनके लिए बहुत ईजी है। ऑरेंज लाइन, BRT, EV बस, रेड पीपल्स और पिंक बस सर्विस से मुसाफिर मुतमईन होने के साथ खुशी खुशी सफ़र भी कर रहे हैं। बेहतरीन सर्विस, आरामदेह सफ़र और किराया भी मुनासिब। देर ही से सही कराची के शहरियों को सरकारी अच्छी बस सर्विस का सफ़र किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची।
घरेलू खवातीन की दस्तकारी और कशीदाकारी इतनी दीदा ज़ेब कि आंख हटाने को जी ना चाहे, मगर मार्केटिंग ना होने से इन खवातीन को इनका मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। ताहम एक गैर सरकारी तंजीम उनके मार्केटिंग के लिए कोशिश भी कर रही है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है कोयटा से उस्मान फानी ने। अफगान महाजिर खवातीन की हाथ से बनी हुई दीदा ज़ेब, सजावटी अशिया और पहनावे गैर सरकारी तंजीम की गैलरी में रखी गई। इनमें से हर एक शह खूबसूरती और दीदा ज़ेबी में अपनी मिसाल आप है। ऐमन का कहना है ये अशिया सबकी पसंदीदगी हासिल कर लेंगी। कोई भी प्रोडक्ट बननी है उसको स्क्रैच से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक लेकर जाना, मतलब ये कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने में लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, किन रंगों में लेना है, फिर उसके बाद उसके पैटर्न बनाना। इन अशिया को मार्केट में लाने के लिए अफगान खवातीन इंतहाई खुश हैं। कहती हैं कि इससे इनको बेहतर मुआवजा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 6 मंथ का होता है। इस 6 मंथ में हम सिलाई कढ़ाई से लेकर कशीदाकारी तक हम सारा सीख लेते हैं और इसी में से ही हम अपने घर का एक ज़रिया माश बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सी एक्सेसरीज़ मौजूद है, जैसे कि हमारे पास ट्रैवल किट है, हमारे पास वॉलेट्स हैं, बैग्स हैं, हैंड बैग्स है, लैपटॉप बैग्स है, बेल्ट हो गया। बलूचिस्तान में मकामी और अफगान महाजिर खवातीन की कशीदाकारी दुनिया में एक मकाम रखती है। माहिरीन का कहना है कि अगर बलूचिस्तान की खवातीन अपने काम को बेहतर तरीके से मार्केटिंग करें तो ये न सिर्फ उनके मुआश पे अच्छा असर करेगा बल्कि मुल्क व कौम के लिए एक बेहतरीन ज़रिया मुबादला बनेगा। कैमरामैन आसिम बलूच के साथ उस्मान फानी, नियो, कोयटा। मोटरसाइकिल के सस्ते पुर्जे वो भी फी किलो के हिसाब से, टायर से लेकर अब इंजन तक सब कुछ मिलेगा सिर्फ 400 रुपए किलो में। ये बाजार क्यों और कैसे सजा और ख़रीदारी का तरीका कार क्या है, ये फैसल अली से हम जानेंगे। से अटे मोटरसाइकिल जिन्हें कोई पूछता तक न था, इनसे सजा ये है इस्लामाबाद का स्पेयर पार्ट्स पर मबनी सस्ता मोटरसाइकिल बाजार। जैसे ही मोटरसाइकिल खुल रहे हैं तो उनकी फ्रेमें अलग हो रही हैं, तो इनसे चेसिस नंबर काट रहे हैं, आप देख भी सकते हैं सारा, और इंजन नंबर ग्रेड हो रहे हैं। इधर थानों में खड़ी 5,500 से जायद पुरानी मोटरसाइकिलें नीलाम हुई तो खरीदार ने इन्हें बेचने का नया तरीका ढूंढ लिया। खुले आसमान तले हर रोज 300 से 400 मोटरसाइकिल खुलते हैं और फिर हाथों हाथ बिकते हैं। चंद चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, चंद चीज़ें ऐसे है कि कड़ा की वजह से वो ख़राब हुआ है, जंग लगा हुआ है, 10% माल हमारा सेल हो गया। शायरी कहते हैं इस बाजार ने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी, चीज जेन्युइन तो दाम मुनासिब। जेन्युइन चीज़ जो होती है ना, पायदार होती है, अच्छी होती है। ये लोकल जो सामान आम जो बिकता है ना, ये लोकल सामान जो होता है ना, ये ठीक नहीं होता है। महकमा एक्साइज की टीम भी हर वक्त बाजार में मौजूद रहती है, जो मोटरसाइकिल खुलने के बाद वेल्डिंग की मदद से चेसिस नंबर निकाल लेती है और ग्राइंडर से इंजन नंबर भी मिटा दिया जाता है। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये मुहावरा तो आपने सुन रखा होगा और इसी का अमली मुजाहिरा यहाँ इस्लामाबाद की इस मोटरसाइकिल मंडी में देखने को मिल रहा है, जहाँ सालों पुराने मोटरसाइकिलों के काबिल इस्तेमाल पुर्जे फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ सैयद फैसल अली, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सफदराबाद का रुख करेंगे, जहां पर ट्रेन के स्टॉप न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि रेलवे स्टेशन भी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद रफीक से हम जानेंगे, जो कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदराबाद के रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे स्टेशन लाहौर और फैसलाबाद सेक्शन के दरमियान में है। यहाँ पर ट्रेनों के स्टाफ ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन जो है एक बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा है। एक वक्त था कि यहाँ पर दर्जनों ट्रेनें स्टाफ करके जाती थी, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे एक मेले का समा रहता था। जब से ट्रेनों के स्टाफ बंद किए गए हैं, रेलवे स्टेशन जो है बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए, क्या कहेंगे आप? तो कहना ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे बसों के जरिए बहुत ज़्यादा जलीलो ख़वार होते हैं। हमारी हुकूमत के से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे ट्रेनों का स्टाफ किया जाए ताकि हमें सहूलत अच्छी मिले। जी बिल्कुल, इन लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर सरगोदा एक्सप्रेस और फैसला एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएँ ताकि इलाका मकीनों को सफरी सहूलियात मुयसर हो सके। जी अदब, तहजीब और ड्रामे से मोहब्बत करने वालों के लिए लाहौर में फैज़ मेले का आगाज़ हो चुका है। फेस्टिवल भारत से शायर, लिखारी और नगमा नवीस जावेद अख्तर और उतल तिवारी की खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट के साथ मरवा अंसर चौधरी।
अभी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की हसीन यादें ताज़ा हैं। उस पर फैज मेला जैसे सोने पर सुहागा, जहां अदब, तहजीब, ड्रामा, नसर, शायरी सब पर होगी गुफ्तगू। 60 से जायद होंगे सेशंस। सुनने वालों को अदब की चाशनी, म्यूजिक का तड़का, मुख्तलिफ पेंटर्स के शाहकार, लखारियों की फिक्र अंगेज तहरीरों और अदब से मोहब्बत करने वालों का जम्मे गफीर। फैज अहमद फैज की दोनों साहबजादियों का कहना था कि फैज ने पैगाम मोहब्बत आम किया, इसे जिंदा और जावेद रखने के लिए कोशा हैं। दुश्मनियाँ भूल जाएं, अमन कायम हो और कानून की बालादस्ती का इकरार हो, इंसानी हकूक़ की जो पामाली होती है हमारे मुल्क में वो बंद हो। He is a bridge between continents, between people, between countries, क्योंकि उस शख्स कोई सरहद नहीं मानता, शायरी की कोई सरहद नहीं होती। मेले के पहले रोज अलहमरा आर्ट गैलरी में खत्ताती की नुमाइश से आगाज हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुसव्विरों ने शायरी को रंगों की जुबान दी। शायकीन का कहना था कि इस तरह के मेले घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा के झोंके साबित होते हैं। फैज़ ने बात की मोहब्बत की, बात की शफकत की, बात की इंसानियत की, और इंसानियत सरहदों की मोहताज नहीं है। भारतीय शायर जावेद अख्तर, नकाद और अदाकार अतुल तिवारी की खुसूसी नशिस्त भी हुई। जावेद अख्तर ने फैज अहमद फैज से अपने लगाव का भी इजहार किया। उनकी मकबूलियत जो है हिंदुस्तान में बेपनाह है, बेपनाह है। कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे शायरी से ज़र्रा बराबर दिलचस्पी हो और उसने फैज़ साहब को ना पढ़ा हो या उसे फैज़ साहब के शेर न याद हो, ऐसा होगा ही नहीं। फैज़ एक ऐसी क्लासिकल शख्सियत है, एक ऐसा क्लासिकल पोइट है जो अपने ज़माने में भी उतना रेलेवेंट था जितना बाद में रेलेवेंट रहा। जब वो ज़िला वतन थे तब भी उतना ही रेलेवेंट रहे, और अब जब वो नहीं है हमारे बीच में तब भी उतना ही रेलेवेंट है। अजोका थिएटर ने पंजाबी ड्रामा अन्नी माइदा सुफना पेश किया और खूब दाद समेटी। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। कुदरती मनाजिर, खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन जापानी कैलेंडर्स की नुमाइश, सकाफती तारीखी लाइफस्टाइल हो या पहाड़, बागीचे और मुनफरिद अक़साम की फूलों की पेंटिंग्स की तस्वीर और रवां साल के दिन तारीख को समोया गया जापानी अंदाज में। कराची से रिपोर्ट करेंगी मोना सिद्दीकी। जापानी कल्चर सेंटर में सजी कैलेंडर्स की नुमाइश, पानी लाइफ स्टाइल, इमारतें, कुदरती मनाजिर, खूबसूरत फूल और कल्चर के नुमाया रंगों की तस्वीर के संग कैलेंडर्स की नुमाइश में काउंसिल जनरल जापान ओडागरी तोशियो ने कहा, इस नुमाइश में जापान की तहजीब कल्चर के साथ 70 साला दोस्ती की चाशनी भी है। We have this exhibition annually, all the calendars from Japan and in cooperation with the Japan Calendar Association. मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैलेंडर्स के डिस्प्ले को शुरा ने पसंद किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसका रीज़न ये कि वो दिखा रहे हैं कि उनकी रूट्स क्या हैं। इनडायरेक्टली अपने कैलेंडर से वो ये शो करेंगे उनका कल्चर क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या है। बहुत अच्छा लगा, सोच से भी ज़्यादा अच्छा था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। यहाँ पे आके आर्ट देखा, प्लांट्स वगैरह, नेचर के बारे में पता चला, तो इट्स लाइक रियली गुड। कैलेंडर्स के मुनफरिद स्टाइल और खूबसूरत रंगीन तस्वीर शुरा की तवज्जो का मरकज बनी। इन कैलेंडर में देखने को सिर्फ दिन, तारीख और साल ही नहीं मिलते, बल्कि जापान का कल्चर, रहन सहन, तारीखी इमारत और कुदरती मनाजिर की तस्वीर भी लाजवाब हैं। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। एक अहम डेवलपमेंट हुई है। कराची में केपीओ ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को ड्रोन की मदद से तलाश किया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के ड्रोन की फुटेजेस भी हासिल की गई हैं, जिसमें दहशतगर्दों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। और आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं एनओ की स्क्रीन में। कराची में केपीओ ऑफिस में हमला करने वाले दहशतगर्दों को ड्रोन की मदद से तलाश किया गया। रजब अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मज़ीद मालूमात लेंगे। रजब, क्या खबर है आपके पास इस डेवलपमेंट से मुतालिक? जी, गुज़िश्ता शब जो दहशतगर्दों ने हमला किया था कराची पुलिस ऑफिस में, उसमें अहम किरदार अदा किया स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने, जिन्होंने ड्रोन की मदद से जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम हासिल किया। इस फुटेज सीसीटीवी जो ड्रोन की फुटेज है वो न्यू न्यूज़ ने हासिल की है। ड्रोन की फुटेज में देखा जा सकता है कि कराची पुलिस ऑफिस की छत पर दहशतगर्द जो है वो किस तरीके से बेदर्दी से जो है वो अहलकारों पर फायरिंग करते हुए भी फुटेज में देखा जा सकता है। जबकि इसी दौरान स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज ने स्नाइपर की मदद से जो है स्नाइपर ने
जो है वो दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर लिया। इस हवाले से ड्रोन की मदद से जो है वो दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रजब। कराची के पी ऑफिस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों की शिनाख्त के बारे में आपको बता रहे हैं कि दहशत गर्दों को ड्रोन की मदद से तलाश किया गया और इसके अलावा फुटेज में दहशत गर्दों को फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।